Hello and welcome to the Expert Talk with NF Sportec. I am Shikhar Nehru. Uh, the society is increasingly understanding the importance of staying fit now. The sportsmen at the top level are also increasingly fitter now. Athletes like Virat Kohli and even Bollywood celebrities are fitter than their predecessors. However, there is a growing desire in the society for quick fix solutions towards a fitter life. With that, I would like to invite Siddhant Upar, a yoga instructor, to the show today. Siddhant sir, welcome to the show. Thank you, Shikhar ji. सर थोड़ा सा it's a privilege to have you. Thank थोड़ा you. हमें बताइए about your background. See, about my background, I never thought that I'll be doing something related to physical activity. I was such a guy. जब sports period होता था तो मेरा वो सोने का period होता था school में. अच्छा. So I did 12th. After 12th, I never thought that I'll be doing something crazy like BTech or CA. I wanted to do something creative. So I enrolled myself for this hotel management. So I was there in hotel management. After hotel, you know how the college life is, and in a blink of eye, the college life went through like this. And then I worked with the two finest hotel of India, one in Mumbai, one in Delhi. Then I realized what I'm doing with my life. But still, जब तक हमें नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होता है, बस तब तक ये होता है कि हाँ, जो थोड़ी सैलरी आती है उसको उड़ाने में टाइम खर्च होता है बस ये. Then one fine day, I attended the workshop with the Art of Living. You know, you must be have heard about this, the organization. Yes, and we are also aware of your involvement with Art of Living. We will talk about it during the session. थोड़ा उसके बारे में हाँ जी, go ahead. So बस अब तो मैं खैर उसका टीचर भी हूँ, पता नहीं कैसे. हाँ जी. So I realized कि हमारा जो मन है वो चलता रहता है ना. I was never a studious guy. So I didn't know कि जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन शांत नहीं होता, because according to science, sleep is an activity, right? According to science. But when I ended that workshop, उसमें योगा तो इतना नहीं था, but हाँ, I realized कि that I can stop my mind. There is something जो उसको रोका जा सकता है, and जब हम कहीं रोकते हैं तभी हम विश्राम में आ पाते हैं. And then I realized कि हाँ, ये complete relaxation है. But again, then I started, मतलब I continued with my job and all that daily mundane life. वो सब चलता रहा. Then one fine day I stopped everything. I was like a kind of a kid. I'm still like a kind of a man person जो एकदम सब कुछ छोड़ के अभी जुनून वाली बात है वो बचपन से है. So उसको एक दिन छोड़ के मैंने सोचा कि क्या करना है. Then I started practicing yoga. Till then, मतलब it was the time when I started practicing yoga. मेरे को 4-5 साल हो गए थे Art of Living का workshop किए हुए. Okay. So when I started practicing yoga, मेरा एक ही aim था. मेरी फिंगर टिप फॉरवर्ड बेंड में नीचे जमीन पे लग जाए, बस. That's the only aim. Yes. Interesting. क्योंकि जब हम योगा करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है बस यार मेरा ना हाथ नहीं लगते. एंड आई टेल यू आई हैव सीन वेरी गुड प्रैक्टिशनर एंड व्हाट दे से, मैं तो अपना सर अपने घुटने से लगा लेता हूँ. आई मीन दैट्स नॉट द योगा, बट हाँ, हर कोई स्टार्ट ऐसे ही करता है. देन आई स्टार्टेड डूइंग योगा. Then I had a word with one of the yoga teacher. तो उन्होंने मुझे बताया कि breath पे focus करो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा वैसा करो. Then I realized and experienced the tremendous change in my whole body and also the mindset when I started using the breath with yoga. And फिर वो muscle engagement जब मैं करने लगा, then all that stuff went like, it was like I was going through a journey of my own. उसके बाद when anyhow जब आप कुछ करते हो, then you realize after a certain period of time कि you should go further into it, चाहे वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करो. Yes. So all this while you were still doing a corporate job, you were still with a hotel या बीच में छोड़ दिया था? No, this is the time when I left the job, when I started doing yoga. Because so मतलब you left the job and you were not already instructing people, like there was no income coming from yoga. No, I was doing nothing. अच्छा. No, Okay. in India we have the privilege. पापा तो बैठे ना, मतलब in India we have the privilege, है ना. So it's like all that stuff happened. So मेरे को लगा कि मुझे ना टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ, how to go further about it. Okay. So luckily I had the saving. Okay. So
I went for teachers training This program. is When I TTC. Yes, teachers training program. Yes, Right. and I'm from the first batch of Shishi School of Yoga. अच्छा, Yes, अच्छा, okay. I'm from the first Wow. batch. So when I came back, I took 4 days workshop. Yeah, 4 days workshop. And Okay. at the end of the workshop, one lady came to me and said कि मेरे बहुत टेंशन था, मैं जीवन में काफी सारी चीजें नहीं छोड़ पा रही थी, ये था वो था एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. मतलब she experienced something beautiful in her journey, in her body, in her mind. So I was numb. I didn't know what to say, what to reply. I was numb. Okay, I just said thank you and came back. And then I thought, this is the thing I'll be doing whole my life. This is the thing I was searching for. See, right now also I'm having the goosebumps because वो after the moment, even I am having goosebumps. yeah. So वो है ना, वो जब relate कर पाते हैं same frequency पे. बेशक. Then Beautiful. after a certain period of time, I joined the Chisel Gym Meerut. Then I started teaching there. Then after a month, this 21st June 2017, yes, I got the opportunity to teach yoga and practice yoga with Swargiya Sushma Swaraj ji. Sushma Swaraj ji, yes. So there were many delegates. So मैं वहाँ गया. So all that stuff happened. So after that one workshop, I never looked back. Since then, I have started teaching yoga. And once I got the opportunity to work in Cambodia out of India, I have taught many classes in India, Bangalore, Mumbai, Delhi, Saharanpur. Even I have taught in jail also. Have you heard about this Dasnath jail in Ghaziabad? Yeah, I am aware. Yes. Yeah. अच्छा, तो वहाँ पे सिखाया आपने? हाँ जी. And in Meerut we have this महिला मतलब जो reformation home होते हैं, तो मैंने वहाँ पर भी सिखाया है. This is that child and women वाला. Yes. हाँ जी, वहाँ पर भी सिखाया है. Juvenile. So I have the diversity. Juvenile में भी सिखाया, हाँ जी. So I have the diversity, the bandwidth from the jail to Sushma Swaraj ji. Wow. तो ये experience रहा. And एक अनुभव जो एक चीज कॉमन रही ना, वो लोगों में अंतर देखना कॉमन रहा. और मुझे ये लगता है कि if I am making any a small change even in anyone's life, तो वो ठीक है, तो वो अच्छा है. So this is my journey and I'm enjoying it. That's amazing. अच्छा, हमारा ये सवाल भी था, तो इसी बीच में ले लेते हैं. One of our viewers asked कि ठीक है, मतलब if I want to become a yoga practitioner or maybe make a living out of teaching yoga, तो एक तो होता है कि आपको योगा प्रैक्टिस करनी है, ऐसा सीखना है, बट और क्या इंग्रेडिएंट होते हैं टू बिकम अ योगा इंस्ट्रक्टर? To become a yoga instructor. So there is one very beautiful, very senior teacher in India. I would not name her. So once she asked me, tell me 3 things about a good yoga teacher. So I said, one should be a good practitioner. See, उस समय मुझे ये realize हुआ जब मैं ये बोल रहा था, actually, because why I am a decent teacher, why people appreciate my teaching is because I have been regular in my teaching and regular in my practice. And the second thing is, you should teach. Many a times, I know many people who have become teachers, still they tell me, सिद्धांत यार कुछ बता ना, हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पा रही, हमारी टीचिंग अच्छी नहीं हो पा रही. I tell you what blunders I have made in my teaching. I will not share that for sure. So, but the only way is you have to be a good practitioner. Practice, जब हम practice की बात करते हैं ना, मैं कहाँ से start करूँ? We never know कहाँ से start करूँ. You just spread your mat, sit, practice. हाँ, teaching के लिए you should go at least for 21 days teachers training program or 1 month teachers training program, because वहाँ पर वो आपको professionally train करते हैं. They will train you professionally. Okay. Then the third thing is you should know the body. We never understand the body of a particular person. If you are teaching in group, if you are teaching in person, so आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसकी body पे कैसे काम करना है. You should know what's the correct alignment. There are many yoga teachers. मैं किसी के खिलाफ नहीं. I'm just telling what I have experienced in my 3 and 3.5 years journey of professional teaching. So आपको alignment पता होनी चाहिए. आप एक बार correct muscle engagement के साथ योगा करोगे ना, that will stay with you. Okay. So these are the 3 things. Nice. Someone actually rightly said कि teaching is one of the most difficult things, क्योंकि आप humans के साथ deal कर रहे हो, और humans से ज़्यादा versatile और fragile और fickle चीज है नहीं इस दुनिया में शायद. So you have to maybe evolve, and हर एक बंदे के साथ हर एक
मतलब एक ही चीज हर एक के साथ नहीं फिट बैठती है, सो यू हैव टू कीप चेंजिंग योर वे ऑफ टीचिंग। एंड नाउ जैसे आपने बताया कि यू वर विद चिजल एंड देन लॉकडाउन हैपेंड, but you beautifully started an online program and which is called Yoga with Siddhant, and I think you've adapted to that mode of teaching also very well. Yeah, because I was already teaching with one of the company in US. It's a startup of US. Though the owner is in India, so I knew what to do. But frankly speaking, I was never a person who loved online teaching. But now I have realized, since it's 3 months in a row now I have realized we can do it. We can do it. Because if you know how to connect with people, yoga, see, there are millions of videos on YouTube. But why people are referring towards or coming towards the online teaching is because it's a human to human interaction. As you said, कि सब लोग फ्रेजाइल है, सो वी शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल, कहाँ किसको स्केल डाउन देना है, कहाँ किसको स्केल अप देना है। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में एडवांस प्रैक्टिशनर भी आ रहे हैं, बिगिनर भी आ रहे हैं और इंटरमीडिएट भी आ रहे हैं। सो उन तीनों को बताना है, एंगेज रखना है आपको, सबको एंगेज रखना है, बिकॉज एवरीबॉडी इज पेइंग यू इफ यू टॉक अबाउट द प्रोफेशनल वर्ल्ड। करेक्ट। अच्छा चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। गिव अस अ लिटिल ओवरव्यू ऑफ योगा, क्योंकि योगा में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मतलब मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है, बट आई हैव नॉट बीन वेरी रेगुलर, बट मुझे थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में पता है। एंड जो व्यूअर्स भी होंगे उन्हें भी बिट्स एंड पीसेस में, यू नो, किसी को स्कूल में एक्सपोजर मिलता है थोड़ा बहुत। अगर आप स्पोर्ट्समैन रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फिजिकल ट्रेनर्स काफी होते थे जो योगा बैकग्राउंड से आते थे, तो थोड़ा थोड़ा आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा। बट एक हमारे को थोड़ा अम्ब्रेला बताइए आपकी, यू नो, एक हाथ योगा या यू नो थोड़ा हमें आप बताइए। मैं नहीं लूंगा। मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज ये एक कॉमन क्वेश्चन है सोसाइटी का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि आई डोंट इवन नो द ड्रॉप इन द ओशन अबाउट योगा, ठीक है। सो लेकिन अभी योग क्या है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योग, हमने सेकंड या थर्ड क्लास में जब हिंदी में मैथ्स किया था तो हमें बताया था 2 और 3 का योग क्या होता है। अच्छा, हाँ। सो योग क्या है, किसी चीज को सही तरीके से जोड़ना। सो जब हम अपनी बॉडी, श्वास और मन को एक लय में जोड़ देते हैं, जैसे नेचर की भी एक लय है कि सर्दी सही समय पर आती है, आपको भूख सही समय पर लगती है, गर्मी सही समय पर आती है, आपको नींद सही समय पर आती है, हर चीज एक रिदम में चल रही है। वैसे ही हमारी शरीर की एक लय है जो बॉडी, ब्रेथ और माइंड से कनेक्ट होती है। और जब ये बॉडी, ब्रेथ और माइंड ये इंडिविजुअल, यूनिवर्सल से कनेक्ट हो जाता है, दैट इज योग। उसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा पहाड़ों पे जागने की जरूरत नहीं है। Just need to spread the yoga mat and practice a little. And if I talk about a little branches about yoga, आप जब इसी लय में, इसी रिदम में जब आप डिवोशन जोड़ देते हो तो वो भक्ति योग हो जाता है। इसी में जब आप एक्शन जोड़ देते हो, लाइक वी आर डूइंग सम एक्शन राइट नाउ एंड वी आर आल्सो डूइंग सम इंटेलेक्ट नॉलेज, इंटेलेक्ट रिलेटेड थिंग, दिस इज आल्सो द कर्म योगा, व्हाट वी आर डूइंग द एक्शन। एंड जो इंटेलेक्ट हेड टू हेड हम बात कर रहे हैं, दैट इज ज्ञान योगा। एंड वन इज राज योगा, जो हमारे सिर्फ माइंड से रिलेटेड है, जो सिर्फ माइंड की बात करता है कि हाउ टू कंट्रोल योर ओन माइंड, दैट इज इट। देन देयर आर 8 limbs. Have you heard about that Swami Vivekananda talk in California? थोड़ा सा, yes, a little, right, yeah. So बस वही है, स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ राजयोग के ऊपर ही काम किया है, सिर्फ राजयोग के ऊपर। हाँ जी। तो मतलब ऑल्सो बहुत सारी चीजों पे किया है, बट उनका जो मेजर फोकस था वो राजयोग था। एंड देन द hatha yoga comes, which is widely spread in the world, मतलब जो हम ज्यादातर जानते हैं, which is related towards the body. And what is hatha yoga? If I talk about ha and tha, ha represents the right nostril and tha represents the left nostril. Yes, a little bit. नहीं इतना हमें इतना वो करने की जरूरत नहीं, but since I am a yoga teacher, तो थोड़ा सा हम आपको वो कर लेते हैं। So जब हम हा मतलब right and the left nostril, and right nostril represent the sun, left nostril represent the moon, इन दोनों का बैलेंस है हठ योग। अब इस हठ योग में काफी सारे ब्रांचेस आ गए हैं। तो जैसे कि एक हो गया अष्टांगा योगा, एक हो गया विन्यासा, एक हो गया बिक्रम योगा, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है और मतलब यू क्रिएट अ हॉट रूम अराउंड 40 डिग्रीज का सेल्सियस। हाँ जी, बिक्रम योगा, विच इज वाइडली स्प्रेड इन द वेस्ट, यूएस। ओके।
एंड ऑल्सो दिस अष्टांगा, यिन योगा, hatha योगा, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ लोगों से कहूँ कि आपका फेवरेट क्या है, तो आपका फेवरेट कुछ भी हो सकता है, बट वन थिंग यू हैव टू स्टिक विद द प्रैक्टिस. आप एक चीज अगर आप आज कर रहे हो, यू माइट नॉट लाइक इट इन द बिगिनिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट अस, बिकॉज वी आर फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, है ना? तो जब हमें ब्रश करने के लिए सुबह बोला जाता था, तो बचपन में बहुत स्टार्टिंग में तो हमें गुस्सा आता था, राइट? मुझे तो आता था, है ना? सो but once we know that this is good for my own hygiene, my own freshness throughout the day, then we realize कि फिर तो हम रात को भी ब्रश कर चुके होते हैं, right? So one thing in the beginning we have to begin with, we have to continue. उसके बाद कुछ जाके हमें कुछ समय के बाद थोड़ा सा वो आता है. अंडरस्टूड. अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, आपने एक वो बताया ब्रॉड योगा के बारे में, एंड इट इज जेन्युइनली एन ओशन. आपने सही बोला था. मुझे ये नहीं पता कि आपने ड्रॉप सीखा है या आपने काफी सीख लिया, क्योंकि जिस तरीके से आप समझा रहे हैं आपके बेसिक्स काफी क्लियर है, आई थिंक. हाँ, बेसिक्स ही इसमें क्लियर करने हैं बस. अच्छा, मेरा अगला सवाल होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, बट इज देयर समथिंग लाइक, अच्छा, इफ आई एम अ यंग प्रैक्टिशनर, मैं बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दिस टाइप ऑफ योगा आई शुड स्टार्ट विद, या आई एम अगर आई एम अ प्रोफेशनल एथलीट तो मुझे इस टाइप का प्रैक्टिस करना चाहिए, और इफ आई एम स्लाइटली एजेड या बड़ी उम्र का हूँ और की हूँ, या मेरी जो बॉडी वो है मोटर स्किल्स हैं वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब ऐसा कुछ, इज देयर सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस टुवर्ड दिस, या ऐसा कुछ? 100% देयर आर गाइडलाइंस, बिकॉज क्या होता है कि दिस आई हैव रियलाइज्ड 2 years बैक ओनली कि वी शुड ऑलवेज आस्क, मतलब एज अ टीचर वी शुड ऑलवेज आस्क, is there any health condition I need to be aware of before we start the class? Okay. Because that is the time you can connect and you can tell about the contraindication in the scaled down version, that and the alternative of the same practice. And अगर आप थोड़ा सा एजिड है तो आपको ग्रुप क्लास में नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. अगर आपकी फिजिकल कंडीशन ऐसी और आपने कभी योगा प्रैक्टिस नहीं किया, रीजन क्या है कि you might hurt yourself if you are not a practitioner. एंड इफ यू आर प्रैक्टिशनर, तो आपने तो देखा होगा वीडियोस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे 105 साल के लोग भी हमसे अच्छा योगा कर लेते हैं, है ना? सो एंड यस, इफ यू आर यंग तो आपको ना थोड़ा डायनामिज्म चाहिए, राइट? यू कैन नॉट गो इन अ क्लास. सी आई एम अ मेडिटेटिव पर्सन, आई एम अ मेडिटेशन पर्सन, आई लाइक एंड आई लव मेडिटेशन एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ योगा. बट इफ यू आर अ डायनामिक पर्सन, अगर आप क्लास में जाओगे ना, आपसे टीचर कहेगा सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए, यू विल फील बोर्ड. बिकॉज मैंने भी जब पोस्ट आर्ट ऑफ लिविंग की वर्कशॉप करी थी, मैंने ये टीचर क्या सिखाएगी मुझे आर्ट ऑफ लिविंग, मैं इसको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता, है ना? सो यही इसलिए मैंने कहा जो 3 चीजें थी, प्रैक्टिशनर, आपको प्रैक्टिशनर होना चाहिए, आपको टीचिंग आनी चाहिए, आपको टीचिंग करते रहना चाहिए, और तीसरा यू शुड अंडरस्टैंड द बॉडी. सो आपको वहां पे थोड़ा डायनामिज्म दिखाना है, वहां पे आप थोड़ा अष्टांगा करवा सकते हो, अष्टांगा ए, अष्टांगा बी, सन सैल्यूटेशन. एंड यू, और हमारा जो यूथ है वो किस चीज से फैसिनेट होता है? इफ आई टॉक अबाउट दी स्टैट्स एंड इफ आई मेक देम डू एनीथिंग जो उनके चैलेंज के बाहर है, हाँ, दिस इज समथिंग चैलेंजिंग. आई टेल यू, आई हैव सीन वेरी गुड प्रैक्टिशनर, वेरी गुड जिम पर्सन, बट दे कैन नॉट होल्ड द पोस्चर मोर देन 30 seconds. बिकॉज मेरे को जिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई रिस्पेक्ट जिम, वो करना चाहिए, वेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी. बट लेकिन क्या है कि वो चैलेंज और वो मसल एंगेजमेंट हम भूल गए हैं, वो हमें नहीं आता है. So, मेरा आपसे अगला सवाल यही होने वाला था कि कई लोग सोचते हैं कि योगा इज नॉट, यू नो, मतलब इज नॉट अ होलसम एक्सरसाइज इन इटसेल्फ. तो मतलब समझते हैं कि इट्स अ स्मॉल पोर्शन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी पर्पस. तो थोड़ा सा shed some light on can yoga by itself be good enough for strength building, for stamina building? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में. इस क्वेश्चन का मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. अच्छा, इंडियन सुपरमैन कौन है? इंडियन सुपरमैन अभी टीवी पे भी आए थे लॉकडाउन की स्टार्टिंग में. नहीं, रामदेव अभी नहीं, पुराने टाइम की अगर हम बात करें, पुराने इंडियन सुपरमैन हनुमान जी. अच्छा, हाँ, ठीक है, हनुमान. उस टाइम पे तो जिम नहीं था. हाँ, बिल्कुल. वो सिर्फ योगा करते थे.
उस टाइम पे सिर्फ योग चलता था। बट एक प्रॉब्लम, दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम, इट्स अ हाँ जी, हनुमान जी इज अ माइथोलॉजिकल क्रिएचर, मतलब वो थे कि नहीं थे उसकी भी हमें वो नहीं पता, मतलब नहीं, हनुमान जी इज नॉट अ माइथोलॉजिकल मतलब कैरेक्टर। yes, if you talk about Shiva, Ganesha, they are from the mythology. अच्छा but हनुमान yes, जी, ओके Hanuman ji is from the history. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड विद So, इट देन। हाँ जी, तो अगर हम देखें कि अगर हनुमान जी जो उन्होंने हिमालय पर्वत उठा लिया वो योगा से पॉसिबल है, सो ओके ऑब्वियसली हम तो कुछ ना कुछ वंडर्स कर ही सकते हैं। एंड इफ अगेन आई रिपीट, अगर आपको सही मसल एंगेजमेंट पता है, अगर आपको पता है कि आपको ब्रेक कहाँ देना है, आपको श्वास कहाँ लेनी है, आपको यू नो when we do the warrior one posture, it's a simple very general posture. We we are letting the hips off, we are sitting the hips down, engaging the muscle down and stretching the spine up. See, there are little differences और वो तभी समझ में आते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। बट यस, अभी का क्या है, आज का टाइम क्या है कि हमारा ना मतलब वी हैव द होल वर्ल्ड एट द टच ऑफ आवर थंब, हमारे मोबाइल पर, राइट? बट तो हमारा ना सारा काम वो हो गया, हम बटन दबाते हैं एसी चालू हो जाता है, बटन दबाते हैं फैन चालू हो जाता है, सारी चीजें हमारे बटन्स में है, ठीक है? तो लेकिन इसलिए हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम हो गया। इसलिए राइट नाउ इट्स गुड आप थोड़ा सा वेट्स भी करो और थोड़ा सा योगा भी करो, ताकि मैंने स्टार्टिंग में फुल बॉडी, हाँ जी, आपका फुल बॉडी का वो रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग एक तरीके से क्विक फिक्स जनरेशन है, तो एंड टेल मी इफ आई एम करेक्ट कि योगा इज लाइक व्हाट यू नो आयुर्वेदा इज फॉर मेडिसिन और होम्योपैथी इज फॉर मेडिसिन, कि ऐसा नहीं है कि आपने एक दवाई खाई आपका फीवर उतर गया। तो योगा मतलब अगर आपको फिटनेस में योगा करनी है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप जिम में जाते हैं, आपने बाइसेप कर्ल किया तो एकदम से बाइसेप वो हो जाता है, यू सी दैट इट्स पम्प्ड अप। तो मतलब क्विक फिक्स एंड योगा कैन दे बी मतलब इन वन सेंटेंस या नॉट रियली? सी आई विल टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस कि एक दो चीजों का एग्जांपल दूंगा, मतलब दे आर वर्ल्ड अपार्ट। सी एक क्विक फिक्स माइंड को शांत करने का तरीका है कि हमने रंगीन पानी डाला और हमने व्हाइट पानी डाला और मन शांत हो गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा, हाँ जी। सो मतलब हमने वैसा किया, वो क्विक है मैं, लेकिन आप उसको जिम से रिलेट मत करिएगा, हाँ, मैं एक्सपीरियंस हो जाएगा और इस बात की गहराई में द सटलनेस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन है। और एक तरीका ये, यू सिट फॉर मेडिटेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लाइक मंथ 2 or 3, then you know that mind can be relaxed through the meditation also. हमें 2 पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। ये चाहे ये जिम हो या कुछ भी हो, जो भी एक शॉर्ट टर्म हमें खुशी देता है वो एक मतलब उसे कहते हैं तामसिक खुशी, which is not very मतलब हाँ, which is not very good, है ना? तो वो हम लंबे समय तक नहीं लेकर जा सकते। लेकिन जो हमें लॉन्ग टर्म गोल देता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा चाहे बिजनेस हो या कुछ भी हो, हम कभी भी हम शॉर्ट टर्म गोल तो रखते हैं, बट वो क्यों रखते हैं? ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म की तरफ पहुंच पाए। यस या नो? एब्सोल्युटली। हाँ, जिम अच्छा है और ऐसा नहीं है कि अगर आपको बॉडी के लिए कुछ चाहिए तो आप जिम नहीं, आप सिर्फ योगा से करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे एग्जाम्पल लिया एलोपैथ का, सॉरी होम्योपैथ का, आयुर्वेद का। सो ऑब्वियसली अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो यू विल नॉट वेट कि होम्योपैथिक दवाई लाऊं, 15 बूंद डालो, फिर 15 मिनट वेट करो, नहीं। उस समय पे यू नीड द फर्स्ट एड, है ना? बट व्हेन यू नो नाउ यू कैन सस्टेन, नाउ यू कैन गो टुवर्ड्स द होम्योपैथ, then you should move towards the homeopathy, then you should move towards the Ayurveda. And now the world is moving towards the Ayurveda. You know, haldi, turmeric is not ours. हमारा पेटेंट नहीं है उस पे। And there are many Indian herbs जिसपे हमारा पेटेंट नहीं है। And that is why the reason is कि योगा डे इंडिया ने बोला 21 जून को। मतलब there is a whole big story after मतलब about this story। 2010 में मीटिंग हुआ बड़े-बड़े योगा टीचर्स का, बैंगलोर में मीटिंग हुआ था। Then Narendra Modi ji said, when I'll be prime minister, we'll do something about yoga. And now you can see yoga is altogether a very good business in India. And I tell you, what is the economy of India? You must be knowing because you are CA. What is the economy? It's some, I think 2.5 trillion or 2 trillion at the moment, something like that.
3 ट्रिलियन बिजनेस है अमेरिका में योगा का। हाँ, सो ये है, दिस इज योगा। एंड इसीलिए हमें दोनों करने चाहिए। इसलिए आई और दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, लेकिन एक चीज है, आप अगर ये दोनों करते हो, आप ऐसा कर लो कि आप सुबह और शाम कर लो। नहीं तो आपको एक गो में करना है तो पहले आप जिम करो, पहले आप वेट करो, पहले आप ये सारी, एंड देन यू शुड प्रैक्टिस योगा। बिकॉज जब आप शवासन के बाद फिर घर जाओगे, है, देन यू विल बी हैविंग द काम स्टेट ऑफ माइंड इफ यू नो हाउ टू प्रैक्टिस शवासना। ओके। हाँ, तो फिर इसी बारे में बात कर लेते हैं कि काफी लोगों का मिसकंसेप्शन होता है या एक बिलीफ होती है कि यार शवासन मतलब खत्म तो हो गया, अब अगर सोना ही है तो मैं घर जाके सो जाता हूँ, मैं क्यों शवासन करूँगा। तो बिल्कुल क्या है इम्पोर्टेंस शवासन की अकॉर्डिंग टू यू? एक योगा की जो क्लास होती है, चाहे 45 मिनट्स हो, 60 मिनट्स हो, 75 मिनट्स हो, जो जितनी भी देर का आपका सेशन है, दैट इज नॉट द होल क्लास। वी योगा टीचर्स एज मतलब सी देम एज कि वो एक बंदा की एक लाइफ है, वो एक सेशन है। इसलिए आते ही बैठकर हम कहते हैं become aware of the breath in the body, and that is what the first act of life is. When we were born, so हमने रोने से पहले भी श्वास ली थी, राइट? जब हम जाएंगे तो विल बी लाइंग डाउन ऑन द समवेयर, मतलब हमें नहीं पता हम कहाँ पड़े होंगे, है ना? सो जब हम पूरे वो आसन कर रहे हैं, एंड if I talk about the asanas also, if I'm telling you practice the tree pose, a simple balancing posture, we are not just practicing the tree pose, but yes, when we practice the tree, we are imbibing the qualities of a tree. एक जैसे पेड़ की एक क्वालिटीज है, हम वो इम्बाइब कर रहे हैं। उसकी जड़ें मजबूत हैं, वो रूटेड है, वो ऑक्सीजन दे रहा है, उसका गिविंग नेचर है, एंड दैट इज हाउ द क्वालिटी वी आर इम्बाइबिंग देन व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग द ट्री पोज। जब हम वॉरियर पोज कर रहे हैं तो वॉरियर का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ रहे हैं। वॉरियर के अंदर एक वो तीक्ष्णता है कि वो, हाँ, वो एक जगह स्थिर रह सकता है। अगर उसके सेनापति ने कह दिया कि हाँ यहाँ खड़े रहना है तो यहाँ, दैट इज हाउ इट इज। When after all of this, आपको पूरे दिन काम करके रात को या फिर पूरी लाइफ काम करके हमें एक मतलब एक तो ये सुकून चाहिए, राइट? तो आपने एक काम किया, आपको चाहिए फाइनल रिलैक्सेशन। बट फाइनल रिलैक्सेशन हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट प्लानिंग, अच्छा ये हो गया वो हो गया, एंड दैट इज वेरी मच नेचुरल, दैट इज वेरी मच नेचुरल। उससे नहीं घबराना है, बट लेट गो ऑफ द बॉडी, लेट गो ऑफ द थॉट्स, बट वी स्टार्ट क्रिएटिंग द चेन ऑफ थॉट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा शिखर जी के साथ मीटिंग है, अच्छा शिखर जी तो चैपल स्ट्रीट के पास रहते हैं, तो चैपल स्ट्रीट के पास तो मेरा स्कूल भी था, अच्छा स्कूल का मेरा, हाँ, वी स्टार्टेड either the chain of thought or something, अच्छा न्यूजीलैंड, then we go to the Australia or some anything which is not required for the mind or either the body, but that is the time when the body is integrating with the conscious you have done throughout the session, वो हमारी मसल मेमोरी में जा रहा है। जब आप विश्राम कर रहे हैं, आपको पता वो सबकॉन्शियस अपने आप ले रहा है, बिकॉज व्हेन यू वर देयर इन पोस्चर यू वर नॉट सो मच अवेयर अबाउट एवरीथिंग, राइट? ये होता है, ये हमारे साथ आज भी होता है। बट जब आप शवासन करते हो, वो सारी चीजें आपके अंदर इम्बाइब हो रही है, एंड द बॉडी इज गोइंग डीपर इनटू इट्स ओन रेस्ट, वो अपने आप जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि वो शवासन जरूर दे। एंड आपको पता है, आप चाहे यहाँ योगा कर लो, डू एनी सॉर्ट ऑफ योगा, the one thing you will find common is shavasana. I'm telling you, yes. Okay. And yes, ये थोड़ा सा लोगों को ये सीखना होगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। We cannot learn the shavasana because what is the English of shavasana is corpse pose. How can you imitate like a dead person? And this is one of the most difficult posture in the yoga. I will share my example, my personal experience. I attended one yoga retreat. This is from a beautiful person from Chennai, and हम लोग गए थे धर्मशाला मैक्लोडगंज, and धर्मशाला में एक retreat में हम लोग रहे थे. It was I think 5 या 6 दिन का था, and every morning we would practice, and we would start our practice with 5 मिनट ऑफ जस्ट अपना मतलब माइंड को स्थिर करना, जो सराउंडिंग वो थी एम्बिएंट नॉइजेस, वॉइसेस, उन सबको बिल्कुल ब्लाइंड मतलब हटाना अपने, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी कि आप हाउ डू यू
चैनलाइज एवरीथिंग इंटरनली, थॉट्स को बिल्कुल रोक दो, क्योंकि सबकॉन्शियस में इतना कुछ चल रहा होता है विद इन, जैसे आपने बोला कि शिखर यहाँ, शिखर चैपल स्ट्रीट, वो मेरा स्कूल, मतलब इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं कि एंड योर माइंड इज सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग दैट टू कंट्रोल इट इज अ चैलेंज आई थिंक। तो मैं वही बता रहा था कि वो जो 5 मिनट होते थे वो सबसे डिफिकल्ट होते थे मेरे लिए। मतलब मैं पोस्चर्स कर लेता था एंड आई इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड, बट दैट वाज द हार्डेस्ट थिंग टू यू नो। तो अभी मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने और हमने एक टाइम डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर इस टाइम ये लाइव सेशन करेंगे, राइट? सपोज मैं भी आ गया, मैंने लॉग इन कर लिया, मेरा सब कुछ लगा लिया, सब चीज सेट है ना? आप मुझे कह रहे हो हाँ जी सिद्धांत जी स्टार्ट करते हैं, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, आई एम लुकिंग हियर एंड देयर, एवरीथिंग वॉइस इज क्लियर, एवरीथिंग इज देयर, ओके। अगेन आफ्टर सर्टेन फ्यू सेकंड्स यू अगेन सेड सिद्धांत जी आपने मुझे कॉल भी किया है ना, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, सब कुछ हुआ, तो आपको इंटरव्यू में कितनी देर तक रहोगे? टेल मी, मैक्सिमम 3 to 4 to 5 minutes, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम थॉट्स आते हैं ना हमारे पास, जब हमारे पास थॉट्स आते हैं, जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, जब हमारे पास थॉट्स आते हैं, we start entertaining them, okay, 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 let them come. See, there are clouds in the sky, right? They come and they go on their own, and that is how our thoughts are. They come and they go on their own. जो कल आपको थॉट परेशान कर रहा था वो आज आपको नहीं कर रहा, माइट भी शाम को करे, है ना? थॉट्स मतलब हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, थॉट्स को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही होती, मुझे बड़ा पसंद है ये बोलना, when I am working with my team and you know मतलब सॉल्व नहीं हो पा रही है and you're stressing about it, तो मैं बोलता हूँ let's sleep over it यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार काम कर भी जाता है, because sometimes within our thoughts we magnify the problem, हम जितनी होती भी नहीं है उससे ज्यादा उसको समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो मे बी न्यूटन जी ने जब उसकी ग्रेविटी की खोज करी थी, हाँ जी, नहीं ग्रेविटी की खोज करी थी उन्होंने, सिंस ग्रेविटी वाज ऑलरेडी देयर बट ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी, राइट? So it was not the invention. See, anything in this world is not an invention, it's always the discovery. That is the one subtle thing you need to understand. हाँ, तो कब वो खोज कर पाए? उन्होंने सारी मेहनत कर ली, सारी जद्दोजहद कर ली, सब कुछ कर लिया, but when we came in 1903, okay, now I cannot do anything. Then the apple fall, है ना? And then he discovered the gravity, what the gravity is, and that is how the body mechanism, the mind works. But ये हम ना कहीं डेली मंडेन में भूल जाते हैं, because we are humans, we run with the intellect, we run with the logic. This mind is very sharp. अच्छा ये लॉजिक, मैंने तो 2+2 सीखा है, मुझे तो इतना पता है। This is how it is. बस ये आगे नहीं, वही मैं कह रहा था, if you sit, if you learn the meditation, what is the correct technique, then हमें पता लगता है कि हाँ, this is the right technique, that is how I can stop the thoughts. और एक मिथ जो मुझे अभी तक सोसाइटी का अभी तक जो है काफी लोगों में है, मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेडिटेशन। आप जब ध्यान करते हो, दैट इज द बाय प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑब्वियसली इंक्रीजेस। ओके, अच्छा, एंड आल्सो टू कंक्लूड आवर क्वेश्चन की शवासन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, it is part of a complete routine, and the routine will not end until you do shavasana. Can we say it like that? We cannot say, we cannot be rigid in yoga. If anybody walk out of my class without doing the shavasana, I will not say anything. But yes, if they will have an experience of what is shavasana, what shavasana actually is, they will for sure gonna love shavasana for the next time. We should know there are few instructions, and when I'm giving the instruction, when the teacher is giving the instruction, they should stop, because when you are hearing the instruction, still the one of the senses is in the outer world, but the yoga is all about the inner world. Are you getting what I'm saying? Yeah, absolutely. Absolutely. सुन रहा हूँ, लेकिन वही सिद्धांत अच्छा अब कुछ बोलेगा, टीचर अब कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, ये चल रहा है हमारे दिमाग में, है ना? बट जब हम स्टॉप करते हैं, जब हम पॉज देते हैं, दैट इज द बॉडी एंड द माइंड सिंक डीपर इनटू द प्रैक्टिस। लेट्स सुन। अच्छा, तो मेरा अब आगे चलते हैं। एक मेरा सवाल था डाइट से रिलेटेड,
कि काफी सुना है कि मतलब एक्सरसाइज इज मतलब अगर 100% देखा जाए हेल्दी बॉडी को, तो अबाउट 80 to 85% इज डाइट एंड 10-15% इज योर एक्सरसाइज एंड योर फिजिकल एक्टिविटीज। तो थोड़ा सा बताइए कि योग एंड डाइट, व्हाट इज योर व्यू अबाउट? हाँ, अगर इन पर्टिकुलर अगर हम योगा की बात करें, then there are apatya which is suitable diet for the body, and there is apatya है that this is very difficult to follow in today's scenario. दो साउथ इंडिया की, लेकिन अगर आप प्लेट देखो साउथ इंडिया में वो कल्चर आज भी फॉलो करते हैं। they have the 6 particular taste, that's sweet, sour, salty, bitter, astringent and pungent. वो टेस्ट उनकी एक थाली में होते हैं। यू हैव बीन टू साउथ इंडिया, तो आपने देखा होगा वो अलग अलग तरीके की चीजें होती है। बट यस, डाइट आपको अच्छा फॉलो करना चाहिए। आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, आई रियलाइज मैं नॉन वेज के आज भी खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं कभी दूंगा, बिकॉज आई हैव हैड, नॉट बिकॉज आई हैव हैड इट, बिकॉज ये एक अच्छा सोर्स है और इजी सोर्स है प्रोटीन का। हम वी लैक इन रिसर्च, बट आप देखेंगे काफी सारे आज अच्छे ट्रेनर्स एंड अच्छे प्रैक्टिशनर्स आर बिकमिंग वीगन, लाइक विद्युत जम्वाल, वी मस्ट बी नोइंग हिम नेम, राइट, हिज नेम। So Vidyut Jamwal, I forgot one international athlete, उनका भी नाम मैं भूल रहा हूँ। So वो भी vegan है ना? And if I talk about this percentage, that around 70% is the diet, around 20% is the exercise, the physical workout, right physical workout, I would rather say. 7% is the sleep. अच्छा. Yes, 7% is the sleep, and 3% is the mix of all. This is मतलब yes, there are many theories जो कहते हैं 18, 85, 80, 15, वो अलग अलग थ्योरी हैं, बट जो मैं समझ पाता हूँ वो ऐसे है 70, 20, 7 and 3। अगर आप इसका सही कॉम्बिनेशन रखेंगे ना, देन आप, मुझे लगता है कि ये आपको फिजिकल फिटनेस में और मेंटल फिटनेस में, बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू अ हेल्दी लाइफ। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला टू अ हेल्दी लाइफ। और यस, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने एक चीज बचपन से सुनी है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। हाँ, तो हमारी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रखती है कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो। I'll show a very short story with you. When I was in the hotel management, so आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में वी आर ऑलवेज हंग्री, राइट? सो मतलब वही हमें को फूड पॉइजनिंग हो गया था लखनऊ में। अच्छा। सो मैंने डॉक्टर से पूछा कि हाँ भाई क्या रीजन है, कैसे क्या कर, उसने कहा कि आप खाना कैसे खाते हो। मैंने कहा कि हाँ, रात को कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन उसने कहा आपको हर 2 घंटे में खाना खाना है। दैट इज व्हेन वी कैन अवॉइड द एसिडिटी, एंड दैट इज व्हेन आई लर्न कि हाँ, एसिडिटी के लिए आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना है। अब ये नहीं है कि हर 2 घंटे में आप ले आओ छोले भटूरे की एक प्लेट। डाइट तो मतलब देयर मतलब इन्यूमरेबल रिसर्च इज डन ऑन diet and the sleep. Sometimes we should talk about this whole topic, only the diet and sleep, but we will invite some other person also who is expert in the diet. ठीक है। एंड आप छोले भटूरे हर बार मेंशन करते हैं, मुझे लगता है आपको छोले भटूरे बड़े पसंद है। आई एम अ पंजाबी, आई एम अ फूड लवर। मैं एक मतलब मैंने बाइक पे हम ट्रिपलिंग करके लखनऊ से एक जगह गए थे सिर्फ गुलाब जामुन खाने, 155 किलोमीटर। हाँ जी। I've been to Mumbai just to have this prawns, because यहाँ पर क्या मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी ने बोल दिया था यहाँ क्वालिटी नहीं आती, फ्रेश नहीं आती। I've been to Mumbai just to have prawns. अच्छा। But now I am full vegetarian. अच्छा, तो अभी we have received some questions from our viewers, तो वो हम थोड़े से लेते हैं whichever are relevant। तो वेदांश ने पूछा है, I am restricting my calorie intake to 1300 max daily, and while balancing macros for weight loss, starting I got results, and after that it's stagnant. So is it safe? What else I can do to get results? See, इसीलिए that is why we should always consult a certified dietitian, because वो हमारे 2-3 even I am consulting a certified dietitian, वो मेरे हर हफ्ते के हिसाब से मेरी डाइट चेंज करते हैं। उनको पता है कि हाँ आपकी बॉडी में क्या है, आपका दिनचर्या क्या, व्हाट इज योर डे टू डे रूटीन, एंड हाउ मच यू आर डूइंग द एक्सरसाइज, हाउ मच फिजिकल वर्क यू आर डूइंग,
है ना. So we should always consult a perfect and a certified dietitian. So I would rather suggest Vedant to consult a dietitian for this. ठीक है, चलो, we'll take the next question. Devanshu has asked how to improve shoulder mobility and strengthen it. How to improve shoulder mobility. शोल्डर मोबिलिटी. ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज पे काम करना है देवांश, तो आपको उसको रोटेट करना है, आपको उसको एंटी मतलब उस पे आपको काम करना है. देन यू शुड डू समथिंग. मतलब राइट नाउ आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी. देन फॉर दैट यू हैव टू कम इन द सेशन. मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ करो. You can search any video. मतलब there are lot of videos on YouTube and something. And obviously strength पे जब हम किसी चीज पे strength पे काम करते हैं, for example when I started practicing for the handstand, I didn't know I have to work on the shoulders also. So मेरे को shoulders पे भी काम करना पड़ा. Then I started working for the handstand. तो मुझे पता लगा I don't have strength in my whole body. मुझे realize हुआ, but I had the decent strength. तो आपको दर्द भी होगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, because we all know when the muscle grow the tear happens, and when the tear happens, जहाँ पर हमें प्रोटीन का इंटेक चाहिए होता है, जहाँ पर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वहीं जाके हमारी वो जगह फिल होकर वो मसल बिल्ड हो, है ना, तब हमें दर्द होता है. एंड आई टेल यू, पहले टेंडन्स ब्रेक होंगे, नए बनेंगे तो वो स्ट्रॉन्गर होंगे. हाँ, 100% जो हमारा बॉडी को मेटाबॉलिज्म है. I don't remember a day in my life since I have started practicing yoga जब मुझे पेन नहीं हुआ. बट ये स्वीट पेन होता है जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें मोटिवेट करता है प्रैक्टिस करने के लिए. So obviously if you have to increase the mobility of your shoulders, obviously you have to do some yoga, some rotational yoga. and ये ना ball and socket joint है हमारा. तो यहाँ पर हम जब भी रोटेशन करते हैं, आप मैं सिर्फ इसको देखना, हम ऐसे करते हैं जहां पर हमारा रोटेशन नहीं हो रहा. when you rotate the whole shoulder blade, you can you see the difference? Yes. अभी तो सिर्फ हाँ ये घूम रहा है. अभी now the whole shoulder is rotating with the shoulder blade. ठीक है. तो for Devanshu, to improve shoulder mobility you have to do shoulder related exercises and ensure कि पूरा holistic movement हो उसका. holistic movement है. very nice. और आपको पता हो कि हाँ भाई कहाँ मेरे को स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ मेरा मूवमेंट हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हाँ आपने थोड़ा सा घुमाया और हो गया. It is not. This is in yoga it is said how the practice has become the firm establishment. Satu dirghakale nairam kriya satkaro sevita dridbhumi. When you do any practice for a longer period of time with honor and respect, then it's become the firm establishment. So that is how it is in anything. Wow. Because yoga is not only what you do on the yoga mat. It's the lifestyle, right? For example, if I talk about what you do, what your business is. आपका कोई भी बिजनेस तभी ग्रो करता है, कहते हैं 5 साल तो आपको ब्रेक इवन पे आने दो. अगर आप ब्रेक इवन में 5 साल पे आ गए ना, देन यू हैव सक्सेस. और अगर लॉकडाउन हो जाए तो शायद 3 साल और बढ़ा दो. दिस इज अ वेरी टची टॉपिक फॉर एवरीवन. हाँ, तो वही है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद ऑनर रेस्पेक्ट, नहीं यही है, देन इट्स बिकम द फर्म एस्टैब्लिशमेंट. सर, आपके साथ बात करके आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करते हैं. मतलब यू टॉक वेरी वेरी बेसिक थिंग्स एंड मतलब द क्लैरिटी दैट आई एज अ होस्ट आल्सो आई गॉट. मतलब आई एम होपिंग दैट द व्यूअर्स आल्सो एंजॉयड द टॉक. बहुत ज्यादा बेसिक एंड क्लैरिटी के साथ आपने बात करी है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू एंड थैंक यू वेरी मच. एक लास्ट चीज एक पूछी है भावेश ने कि पहले हमने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था, हाउ टू बिकम अ योगा इंस्ट्रक्टर, और उसने पूछा है कि जर्नी अबाउट व्हाट ऑल वन नीड्स टू डू. तो आपने थोड़ा सा बताया था, जस्ट थोड़ा और बता दीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस वन कैन डू. इट्स बिकम वेरी, योगा इज वेरी कमर्शियलाइज्ड नाउ. तो मतलब व्हाट इज यू नो इम्पोर्टेंट एंड व्हाट वन कैन अवॉइड टू बिकम a successful yoga instructor. मैं भावेश आपको मैं एक मतलब बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि मतलब हाँ, क्योंकि आपने एक बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछा. आई डोंट नो योर बैकग्राउंड कि आपने स्टडीज में क्या किया और व्हाट योर एम इज. तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा कि सबसे पहले इन माय एंटायर जर्नी ऑफ योगा टीचिंग 3.5 years आई हैव बीन टू अब्रॉड आल्सो.
मेरे से किसी ने आज तक सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बट यस वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आज इन टुडेज सिनेरियो अगर हम कहीं भी जाते हैं तो आपके पास एक वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट यस यू कैन टीच, यू आर सर्टिफाइड टू टीच। And if you are going for a TTC and for this teacher training program anywhere in India, ये आपको अपने स्टाइल के हिसाब से चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द जनरल, द ओपन योगा फॉर एवरीवन, द होलिस्टिक योगा। मैं शीशी स्कूल ऑफ योगा गया एंड मतलब आई फील माई सेल्फ द लकीएस्ट पर्सन कि मैं वहां गया, बिकॉज वहां पर मुझे होलिस्टिक अप्रोच पता लगी योगा की क्या है। बिकॉज एवरीथिंग आई कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, बट वहां जो मुझे जहाँ पे पता लगा कि वहां की ना टीचिंग जो एबिलिटी है ना, जो टीचिंग एबिलिटी, एंड दैट इज हाउ आई कैन कनेक्ट विद पीपल एंड दैट इज हाउ आई फील ब्लेस्ड। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कल्ट, राइट? या सो कल्ट के ऑल इंडिया ट्रेनर हैं, आई विल नॉट नेम हिम, तो वो योगा इंस्ट्रक्टर जो हैं, जो योगा देखते हैं, he went to शीशी यूनिवर्सिटी एंड वो योगा के बच्चों से बात कर रहे थे। They said, अच्छा, उनमें योगा के बच्चों में जो आसन में बहुत ज्यादा वो एडवांस आसन नहीं कर पा रहे थे, वो एक अलग चीज है, बट द कम्युनिकेशन स्किल्स दे हैड इज वंडरफुल। तो योगा यही है, द स्किल इन एक्शन। तो आप देखो कि आप किस चीज में, आपकी स्किल किस चीज में पॉलिश है। अगर आपने अष्टांगा से स्टार्ट किया तो देन गो टू द माइसर। If you want to go towards this holistic approach, then go towards the Shishi school of yoga. I would rather say go anywhere, start the journey, then expand and then Explore on your get own. the exposure. Yes. But start. So stay with an open If mind and just follow the process. कहीं ना कहीं सही जगह पे आप पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल मैंने तो ऐसे किया। Right now I have done this MA also in yoga. I have done multiple trainings in yoga. Yes, post graduate पता नहीं कैसे हुआ, but हो गया, है ना? So कहते हैं किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं, और इफ यू डूइंग अ जॉब दैट यू आर पैशनेट अबाउट, तो वो जॉब नहीं लगती है, फिर वो हॉलिडे लगता है, तो फिर आपको हॉलिडे नहीं चाहिए होता। Actually, I tell you, Shikhar ji, मेरे को इस चीज से याद आया, the one thing I was missing in the lockdown, the starting of lockdown in the March, was my teaching. Seriously, then I started with the intention, not because I wanted to earn, I just wanted to teach. मेरा बस यही अप्रोच था, और मैंने यही कहकर बोला कि आओ हम साथ में योगा प्रैक्टिस करते हैं। So बस यही इंटेंशन है। योगा विद सिद्धांत is your online practice. हाँ जी, though I have named king of variations on Instagram, because on Instagram king of variations, अच्छा, yes, so because I do a little you can follow Siddhant sir on king of variations on Instagram, तो हम लोग आपका लिंक भी उसमें डाल देंगे बिल्कुल। सर, it was an absolute pleasure आपके साथ बात करने में। Thank you very very much, and आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे। 100%। I wish you all the best and hope we meet soon. Thank you, Shikhar ji. Have a great day.